محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ K6 GDPL روشن ٹی وی انتظامیہ کا تاریخی کارنامہ، ماحول کی حفاظت کے لیے 20,000 گنیش مورتیوں کے ساتھ پودوں کی عوام میں تقسیم، ضلع کلکٹر و کئی اہم قائدین نے کی ستائش۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کے تعاون سے بودھن میں کورونا ٹیسٹنگ وین و مریضوں کی سہولیات کے لیے فراہم کردہ ایمبولینس کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر لتا و بلدیہ چیئرمین و وائس چیئرمین محمد احتشام سہیل کے ہاتھوں افتتاح۔ کووڈ قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے گنیش تہوار کا انعقاد عمل میں لایا جائے، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کی عوام سے اپیل۔ یونانی ہاسپٹل لائن گلی میں کووڈ ٹیسٹ سینٹر کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر و TRS کارپوریٹر ایم اے قدوس نے کیا افتتاح۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے لیے شہید کردہ مساجد کی بازیابی کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے ضلع میں احتجاج کا آغاز۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ محرم کی اہمیت و خصوصیت پر ایک رپورٹ۔ قمری مہینوں میں یہ پہلا مہینہ یاد رہے کہ اسلامی مہینوں کے نام قدیم عربوں کے رکھے ہوئے ہیں، سوائے ماہ محرم کے قمری کیلنڈر میں اس کا نام صفر الوالا تھا، جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد محرم الحرام سے بدل دیا گیا اور اس کے بعد کا مہینہ صفر الآخری صفر مظفر بن گیا۔ محرم کا نام اسی لیے محرم ہوا کہ اس میں قتال کو حرام سمجھا گیا۔ یہ مہینہ 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں یہ مہینہ متبرک سمجھا جاتا رہا۔ ہجرت کے تقریباً 17 سال بعد اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر ہجرت کے سال کو اسلامی سنہ ہجری کا پہلا سال قرار دیا گیا۔ محرم الحرام منسوب علی اللہ منسوب اللہ ہے اور یہ مہینوں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے دامن سے بہت سے اہم واقعات وابستہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو مغانن علیہ کی رفعت سے سرفراز کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طوریت کا نزول ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکالے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام سے تکالیف اٹھا لی گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام مغرب بارگاہ رب و دود ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ آرائے سلطنت ہوئے اور اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی روز دنیا کو وجود بخشا گیا، اسی روز پہلی بار ان رحمت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی، اسی روز اللہ تعالیٰ نے عرش لوح و قلم اور حضرت جبرائیل کو جامع ہستی پہنایا۔ یاد رہے کہ جس طرح دنیا کا سنگ بنیاد عاشورہ کے دن رکھا گیا، اسی طرح دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی یوم عاشورہ کو واقع ہوگی۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 افقا کے ہمراہ میدان کربلا میں شام شہادت نوش فرمایا۔ اسی ماہ کے 17 تاریخ کو عیساب فیل نے کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ رکن اسمبلی شکیل عامر کی حلقے کے عوام کے لیے انجام دیے جانے والی خدمات مثالی، ان کی جانب سے عطیہ کیے گئے موبائل ٹیسٹنگ وین و ایمبولینس کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر لتا و بلدیہ چیئرمین و وائس چیئرمین احتشام سہیل نے کیا افتتاح۔ رکن اسمبلی شکیل عامر و بودھن بلدیہ کی جانب سے حلقہ اسمبلی بودھن میں کورونا مریضوں کی نشاندہی و ان کی سہولیات کے لیے عطیہ کردہ 4 ایمبولینس کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر
लता बल्दी चेयरपर्सन तोमू पद्मा रेड्डी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतेशाम सोहेल ने किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना दौर में एमएलए शकील आमिर की जानिब से अंजाम दी गई खिदमत सबके लिए एक मिसाल है। इसी तरह अवाम से अपील की कि वो कोरोना की अलामतें महसूस होने पर खुद से टेस्टिंग के लिए सामने आए और हर कॉर्पोरेटर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अवाम को कोरोना टेस्ट के लिए आगे लाए। और बोधन में कोरोना वबा के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी के लिए वो अवाम की मदद के लिए कंट्रोल रूम्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसका नंबर 8339244172 और 8339244175 है, जिस पर अवाम रब्त करते हुए मालूमात वो मदद हासिल कर सकती है। బోధన్ పట్టణంలో మరి కోవిడ్ వలన ఎవరు కూడా భయపడొద్దు, బాధపడొద్దు అనేది ఒకటి. రెండవది అసలు ఎవరికి కోవిడ్ ఉంది, ఎవరికి లేదు, ఒకవేళ ఉంటే దానికి ఏం చేయాలనడానికి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు వారి తరఫు నుంచి పట్టణంలో తర్వాత మండల్స్లో వారి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి 3 అంబులెన్స్లు ఇచ్చారు పరీక్షలు నిర్వహించడానికి. అదేవిధంగా మున్సిపల్ నుంచి కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసాం. మొత్తం 4 వెహికల్స్ మనం పెట్టుకున్నాము. जमात इस्लामी की जानिब से शहर में सद्भावना मुहिम का आगाज, हर उम्र के अफराद के लिए खुसूसी तकरीबात व मुकाबला जात का इनेकाद। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान सद्भावना खुशगवार ताल्लुकात पैदा करना हमारे मुल्क और समाज के लिए ज़रूरी है, खुसूसन एक ऐसे वक्त जबकि हमारा मुल्क और समाज कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात से दो चार है। ऐसे वक्त बिला लिहाज मजहब व मिलत एक दूसरे से हमदर्दी व गमख्वारी करना दरअसल इंसानियत की मेराज है। इन हालात में जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने पॉलिसी व प्रोग्राम की रोशनी में 10 रोज़ा ऑनलाइन सद्भावना मुहिम 20 अगस्त ता 21 अगस्त 2020 मनाने का फैसला किया है। इस मुहिम के जरिए कोशिश की जाएगी कि तमाम मज़ाहिब के दरमियान अमन, आपसी मोहब्बत, भाईचारा की फिजा पैदा हो सके। इस 10 रोज़ा मुहिम के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबला जात, तहरीरी, तकरीरी, पोस्टर साजी, ड्राइंग, स्लोगन राइटिंग मुनक़िद किए जाएंगे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान खिदमत खल्क़ के कामों का जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों से ऑनलाइन इजलास मुनक़िद होंगे। इनके नुक़्ते नज़र हासिल करके डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। एक सालसानी मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें तेलुगु, उर्दू और हिंदी ज़बानों के शोरा हिस्सा लेंगे। ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक एक वेबिनार मुनक़िद किया जाएगा। मुहिम के इख्तिताम पुरअमन, भाईचारा और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को परवान चढ़ाने के लिए अहद लिया जाएगा। मुहिम के तमाम प्रोग्राम ऑनलाइन जूम पर मुनक़िद होंगे। इस प्रेस मीट में मोहम्मद ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम ज़िले जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद अर्बन के अलावा निज़ामाबाद शहर के तमाम जमातों के अमरा मुकामी सैयद रियाज तन्हा, अब्दुल लतीफ़, ज़ियाउद्दीन, अब्दुल जब्बार, फराज अहमद एसायो, अब्दुल मुशारिफ, अब्दुल हकीम खमर, सोशल मीडिया इंचार्ज शेख हुसैन, नाजिब दावा, मोहम्मद अनवर खान, राब्ते आमा अब्दुल्ला नदीम, इदारा अदब इस्लामी व दीगर मौजूद थे। जमात इस्लामी जहाँ बिला लिहाज और मज़हब मिलत खिदमत खल्क़ सोशल सर्विस के काम अंजाम देती है, वही मुल्क में आपसी भाईचारगी, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी काम करती है। और आज के माहौल के अंदर तमाम मज़ाहिब में आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, सद्भावना यानी खुशगवार ताल्लुक़ात आज वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसे हालात में हम एक दूसरे के साथ बिला लिहाज मज़हब, मिलत, उनके दुख सुख में, हमदर्दी में, गमखारी में शरीक होना, ये दरअसल ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। तो इस सिलसिले में जमात इस्लामी तेलंगाना सारी रियासत में एक सद्भावना यानी खुशगवार ताल्लुक़ात मुहिम, जो मुहिम ऑनलाइन होगी वो 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस मुहिम के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि हम तमाम मज़ाहिब के दरमियान आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा हो सके। हम जो है सबसे लेंगे, वो भी ऑनलाइन होगा और ई सर्टिफिकेट हम जो है जारी करेंगे। यूनानी हॉस्पिटल लाइन गली पर कोविड टेस्ट सेंटर का जिले एडिशनल कलेक्टर व DMNHO और TRS कॉर्पोरेटर ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद के इलाका लाइन गली डिवीजन नंबर 58 में मौजूद यूनानी हॉस्पिटल में आज कोविड रैपिड टेस्ट का आगाज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMNHO डॉक्टर अंजनी व TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि अगर अवाम को कोरोना वायरस की अलामतें महसूस होने
या इस तरह का खदशा होने पर यहाँ पर मुफ्त कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसका नतीजा सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही फोन पर SMS के जरिए दिया जाएगा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस को शुरुआती मरहले में ही बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर श्याम बाबू, जमील व दीगर मौजूद थे। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి అట్లాగే మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి అండ్ యూపీఎస్సీలో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎవరికైతే మనకి సిమ్టమ్స్ అని అనిపించిందా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది, జ్వరం వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ సెంటర్స్కి వచ్చి వాళ్ళు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే ఎటువంటి రుసుము లేకుండా వారికి టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది। ప్రతి టెస్టింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో 10 నుంచి 15 మందికి ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా టెస్ట్ చేస్తాము। తర్వాత రానున్న కాలంలో ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలి। आज से लाइन गली यूनानी दवाखाने में कोविड टेस्ट सेंटर कायम किया गया है। इसलिए मैं सारे आवाम से मेरी गुजारिश है कि जिसको खांसी, ज़ुकाम या बुखार जैसे आंग में दर्द होता है, ये कोविड के जिसको खदशा है, वो लोग जो है सो यहाँ आकर जो है सो टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें घबराने की, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, घर में भी रहकर भी आप इलाज करवा सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज है और प्राइवेट दवाखानों में भी इलाज किया जा रहा है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और आधे घंटे के अंदर आप जब टेस्ट कराएंगे, आपको आधे घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको फ़ोन पर SMS आ जाएगा। और मेरी गुजारिश है कि ठेले बंडी वाले हैं, जैसे गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और गरीब किराना शॉप वाले हैं जो पब्लिक से रब्त में रहते हैं, वैसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप आकर यहाँ पर टेस्ट करा लें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। और मैं कलेक्टर साहब का और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का और हमारे MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ये सेंटर डालने पर। मैं और आगे उम्मीद रखता हूँ कि और कुछ भी काम रहेंगे तो हमारे MLA साहब से और कलेक्टर साहब से हम ज़रूर लेंगे। मैं ये कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय तेलंगाना। डिवीज़न नंबर 60 में मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की क़यादत में नालियों व कलवट की जदीद तामीर का हुआ आगाज़, अव्वाम में खुशी की लहर। आज डिवीज़न नंबर 60 में बारिश के पानी की निकासी व इलाके के नालियों के निज़ाम को और भी बेहतर बनाने की गर्ज से मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की ज़ेर निगरानी इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर नालियों वो कलवट की जदीद तामीर का आगाज बाद नमाज जुमा अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम को हर तरह की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करना एक जिम्मेदार कॉर्पोरेटर का फर्ज है और मजलिसी कायदीन की क़यादत में शहर में कई तरक्याती काम जारी है। इस तकरीब में शेख महमूद, शेख महबूब, शेख इमरान, अफजल खान, शेख नईम, शेख आरिफ, अरबाज व दीगर मौजूद थे। आज हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 60 हजाम कॉलोनी में सीसी ड्रेन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी रोडों के भी काम अंजाम दिए जाएंगे जल्द से जल्द। और जहाँ जहाँ रोडों के काम पेंडिंग है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे। कांग्रेस जिले माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल करीम बब्बू के सना अरताहल पर जिले कांग्रेस पार्टी की जानिब से ताज़ियती इजलास का इनेकाद। जिले कांग्रेस का इजलास सदर जिले कांग्रेस मोहन रेड्डी की क़यादत मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस मोहन रेड्डी, मोहम्मद जावेद अकरम, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद एजाज, गंगा रेड्डी, आबिद बिन हमदान, इनके अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। हालिया दिनों में इंतकाल कर जाने वाले अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल करीम बब्बू, सीनियर कांग्रेस कायद वेंकुलू के इंतकाल पर जबरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान मोहन रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि अब्दुल करीम बब्बू कांग्रेस पार्टी के वफादार कारकुन थे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए हमेशा फिक्रमंद थे और मामूली कारकुन की हैसियत से अपनी सियासी सफर का आगाज करते हुए जिले सदर की हैसियत से इन्होंने पार्टी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए अक़लियती वफादार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जद्दोजहद करते हुए कांग्रेस पार्टी के फरोग़ के लिए इक़दाम किया। इन्होंने कहा कि अब्दुल करीम बब्बू के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ इसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह वेंकुलू ने भी यूथ कांग्रेस के सदर के अलावा कई ओहदे पर फायज रहते हुए हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ देते रहे और पार्टी के बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ रहे। इन कायदीन को खिराज क़दर पेश करते हुए इजहार ताज़ियत किया और अफराद खानदान से भी ताज़ियत किया। गरीबों के मसाइल लेकर जाएंगे, अपन बड़े लीडर्स के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे।
हमेशा गरीबों के साथ उन्होंने रहते थे। दारू गली में वाटर टैंक के पास लेकिन उनका हमेशा 24 घंटे में 12 घंटे तो उन्होंने गरीबों के साथ रहते थे, गरीबों के महलों में रहते थे और गरीबों के मसाइल के लिए हल करते थे। आज अब्दुल करीम बाबू हमारे बीच नहीं रहे तो ये नुकसान हमारे तमाम सीनियर कायदीन को हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब्दुल करीम बाबू जिस तरीके से कांग्रेस का झंडा वार्ड वार्ड में, महल्ले में, गांव-गांव में जिस तरीके से लेकर गए थे, उन्होंने कांग्रेस से हमेशा वाबस्ता थे। कई उनको ऐसे ऑफर्स आए। एक उनका भाई राज्यसभा MP के लिए इलेक्शन लड़ा है नबी के सामने इब्राहिम शरीफ बोल के, तो उन्होंने यहाँ पर कविता के इलेक्शन में इंचार्ज थे उन्होंने, तो उन्होंने खुद बब्बू को बुलाकर ये बोले तुम TRS जेल जाओ, मैं तुमको बड़ा सा बड़ा। करीम बब्बू साहब का गुजर जाना कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है और हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इनकी जगह कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की हैसियत से अब्दुल करीम बब्बू साहब के जो खिदमात थे तारीफ़ सताइश थे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना है हमारे जनाब अब्दुल करीम बब्बू साहब जो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन थे वो हमारे बीच नहीं है। उनकी खासियत ये रही कि वो जब से कांग्रेस पार्टी में आए कोई और दूसरी पार्टी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे और सारी ज़िंदगी वो कांग्रेस ही के लिए काम करें। उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकते। आज कांग्रेस पार्टी पूरी निज़ामाबाद की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर उनको खिरादत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला दर्जा का मुकाम अता फरमाए और कांग्रेस पार्टी और निजाम सागर की सतयाब में भी कोई इजाफा नहीं। मुतहदा जिले निजामाबाद में तखम रेजी के लिए तैयारी करने वाले किसानों को मायूसी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश के बावजूद भी निजाम सागर की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। मांजरा नदी में पानी न होने के बायस निजाम सागर में अभी तक पानी दाखिल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों में मायूसी जाहिर हो रही है। 2 माह की बारिश के बावजूद भी मांजरा में अभी तक पानी का बहाव नहीं है, जिसकी वजह से निजाम सागर में पानी दाखिल नहीं हुआ है। निजाम सागर मांजरा नदी पर तामीर किया गया है और निजाम सागर की मुकम्मल सतह 1405 फीट है और मौजूद सतह 1379.74 फीट है और मौजूदा सतह 1.253 TMC पानी का जखीरा डैम में मौजूद है और निजाम सागर के कैचमेंट एरिया से अब तक 1115 क्यूकस पानी का जखीरा है। निजाम सागर के ऊपरी हिस्से में सिंगोर डैम है और सिंगोर से एक बूंद भी पानी निजाम सागर में दाखिल नहीं हुआ और सिंगूर में 2.311 TMC पानी का जखीरा है। सिंगूर निजाम सागर के ऊपरी हिस्से में बैलेंसिंग रिजर्वर की हैसियत से तामीर किया गया था और सिंगूर पुर होने की सूरत में निजाम सागर को पानी छोड़ा जाता है और अब तक 2 माह का बारिश होने के बावजूद भी ऊपरी हिस्से से कोई खातिर ख्वाह पानी नहीं आया है और मांजरा नदी में बड़े पैमाने पर पानी जमा होने की सूरत में निजाम सागर में पानी जमा होने के इम्कानात है और निजाम सागर के तहत मुतहदा जिले के 60,000 एकड़ महित अराजी पर फसल रेजी के लिए किसान तैयारी कर चुके हैं और अभी तक निजाम सागर में पानी जमा न होने के बायस किसानों में तशवीश पाई जा रही है, जबकि जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ है और दीगर छोटे मुतवस्त प्रोजेक्टों में पानी जमा हो रहा है, लेकिन निजाम सागर में पानी जमा न होने की वजह से किसानों में तशवीश पाई जा रही है। दुबई में 19 सितंबर से IPL का आगाज। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 19 सितंबर से दुबई में आगाज होगा, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आज मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गई। कोरोना वायरस की वबा के बायस IPL के इनेकाद पर गैर यकीनी कैफियत पाई जा रही थी, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात में इसके इनेकाद का फैसला किया गया। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए दुबई पहुँच गयी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शाम में अबू
भी पहुंची। खिलाड़ियों की रवानगी से कबल कई मरतबा तिब्बी जांच की गई। खिलाड़ियों को 6 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा, जहां पहले 3, तीसरे दिन और छठे दिन उनकी जांच की जाएगी। तमाम टेस्ट में अगर वो मनफी पाए जाते हैं तो वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अहल होंगे और इनकी प्रैक्टिस शुरू होगी। इसी तरह खिलाड़ी और मुतालिका अमला का टूर्नामेंट के हर 5वें दिन टेस्ट किया जाएगा। जारिया साल 20,000 करोड़ का नुकसान। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत टैक्स आमदनी में 6,000 करोड़ की कमी, 11,350 करोड़ के कर्ज में इजाफा, अखराजात में 7,500 करोड़ रुपए का इजाफा। कोरोना बहरान का रियासत के सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। साल 2019-20 और साल 2020-21 के पहले 3 माही मालियाती साल की आमदनी और अखराजात का जायजा लेने पर पता चलता है कि जारिया साल 20,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। टैक्स और बगैर टैक्स की आमदनी, मरकजी टैक्स में हिस्सेदारी, ग्रांट से नेट की शरह जहां घटी है, वहीं कोरोना की वजह से शरह कर्ज में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 7,825 करोड़ रुपए कर्ज का इजाफा हुआ है। जारिया साल अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से हुकूमत की आमदनी मुतासिर हुई है। हुकूमत की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ा है। गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में टैक्स आमदनी 17,690 करोड़ रुपए हासिल हुई थी। जारिया साल 11,890 करोड़ रुपए ही हासिल हुए हैं। बगैर टैक्स आमदनी का जायजा ले तो गुज़िश्ता साल जून तक 11,001.24 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। जारिया साल सिर्फ 846 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। मरकजी टैक्स की हिस्सेदारी में 344 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ग्रांट नेट के तहत 1756 करोड़ रुपए कम जारी हुए हैं, जिसकी वजह से माहाना अखराजात की तकमील के लिए खर्च पर इन्हिसार करना पड़ा है, जिसके सबब जारिया साल जून तक तकरीबन 17,670 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करना पड़ा। हुकूमत ने जारिया साल कर्ज हासिल करने का जो मंसूबा तैयार किया था, ये इस साल का 53% हिस्सा है। गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में हुकूमत की जानिब से 6,319 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया गया था। गुज़िश्ता साल कर्ज हासिल करने का जो मंसूबा था वो इसका 26% था। जारिया साल आमदनी तो नहीं हुई मगर कर्ज में गैर मामूली इजाफा हो गया। आदाद शुमार से इसका पता चलता है साल 2019-20 में जून तक हुकूमत की जानिब से 23,56,558 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जारिया साल 31,390.87 करोड़ रुपए की अखराजात हुए हैं। हिंदुस्तान इसराइल तहजीबी मुआहदे पर दस्तखत। बॉलीवुड के साथ फिल्मों की तैयारी और दीगर शोबों में ताउन से इत्तेफाक। हिंदुस्तान और इसराइल ने दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राब्तों को फरोग देने और स्ट्रेटेजिक बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आज एक तहजीबी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसराइल के वजीर खारिजा और हिंदुस्तान के सफीर बराए इसराइल संजीव शनकला ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इस मुआहदे से ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा और दोनों ममालिक की तारीख और तहजीब से मुताल्लिक नौजवानों में शौर बेदार होगा। इसराइल के वजीर खारिजा ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ तहजीबी मुआहदा हिंदुस्तान के साथ किए जाने वाले सिलसिला और मुआहदों का एक हिस्सा है। कबल अजी हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान वाटर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए थे। इन्होंने खुशी के साथ ये बात कही कि हिंदुस्तान की मशहूर फिल्मी सनत बॉलीवुड के साथ मुश्तरका तौर पर फिल्म प्रोडक्शन के लिए वो काम कर रहे। 3 साला मुआहदे के तहत जिन शोबों में ताउन व इश्तराक को फरोग दिया जाएगा, इनमें तहजीबी उमूर का तबादला, आर्ट की महारत, तहजीबी सकाफत के फरोग के ताउन की हौसला अफजाई, लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद वगैरह शामिल है। दोनों ममालिक की जबानों में मशहूर किताबों और कामों के तर्जुमे को फरोग दिया जाएगा। मुआहदे में स्कॉलरशिप्स के जरिए तुलबा का तबादला और दोनों ममालिक के फिल्म फेस्टिवल्स में नौजवानों के हिस्सा लेने, फिल्मों में काम करने और फिल्मों की तैयारी में इनके शरीक होने की हौसला अफजाई भी शामिल है। दोनों मुल्कों के पब्लिशर्स और कौमी कुतुबखानों के अमले के दरमियान रास्ते राब्ते की हौसला अफजाई से भी इत्तेफाक किया गया। सिनेमा और ऑडियो विजन के शोबे में भी ताउन को अहमियत दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हैदराबाद बेहतरीन शहर, मुल्क के 23 से साफ शहर का भी दर्जा, करीमनगर को 72वां, निजामाबाद को 133वां मुकाम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरियों की राय में हैदराबाद बेहतरीन शहर है। मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने स्वच्छ महोत्सव का ऐलान किया। मरकज ने पहली मरतबा हिंदुस्तान के मशहूर तरीन 114 शहरों की रैंकिंग की। ग्रेटर हैदराबाद बेहतरीन शहर के जिम्मे में शामिल किया गया है। हैदराबाद को शहरियों की राय के जिम्मे में बेहतरीन मेगा सिटी अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत अर्बन की जानिब से इस खुसूस में ग्रेटर हैदराबाद को मुबारकबाद पेश की गई। दूसरी तरफ साफ शहरों की फहरिस्त में शहर हैदराबाद को 23वां मुकाम
हासिल हुआ है। दोनों तेलुगु रियासत तेलंगाना और एपी में विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण में 6वां रैंक मिला है, जबकि तिरुपति को बहैसियत मजमूई रैंकिंग में 12वां मुकाम हासिल हुआ है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले में विजयवाड़ा को 4था मुकाम और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 9वां मुकाम मिला है। 10 लाख की आबादी के जिले में तिरुपति को 6वां मुकाम मिला है, राजमंड्री को 51वां, ओनगुल को 57वां, कनाडा को 58वां, करीमनगर को 72वां, कड़पा को 76वां, तनाली को 75वां, चित्तूर को 81वां, हिंदूपुर को 93वां, ताड़ीपत्री को 99वां और निजामाबाद को 133वां मुकाम मिला है। बहैसियत मजमूई मुजाहरे को 2 जिमरों में तकसीम किया गया है। पहला जिमरा 100 इदारा जात मुकामी और दूसरा जिमरा 100 से कम इदारा जात मुकामी शामिल है। पहले जिमरे में छत्तीसगढ़ को दूसरी मर्तबा अवार्ड मिला है, जबकि एपी को 6वां मुकाम मिला है। तेलंगाना को इस जिमरे में 8वां दर्जा हासिल हुआ है। रियासत में कोरोना वायरस के 77% से ज्यादा मरीज सेहतयाब, 1724 नए केसेस, 10 अमवात, जुमला मुतासरीन की तादाद 97,000 से ज्यादा। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के चौहशुमे 19 अगस्त की शाम तक एक दिन में 1724 नए केसेस और 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 97,424 और जुमला अमवात 729 हो गई है। महकमे सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 21,509 सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा 1,576 मरीजों को आइसोलेशन में घरों में अलग थलग रखा गया है। कोरोना वायरस से सीबीआई के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बी प्रवीण राजू जाने प्राना हो सके। वो एक खानगी दवाखाने में तकरीबन 10 दिन से जेर इलाज थे। इसी दौरान राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस कांस्टेबल भी कोरोना का शिकार हो गया। चौहशुमे के दिन 1,195 मरीज सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। अब तक 75,186 कोरोना के मरीज सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी तरह से तेलंगाना में डिस्चार्ज होने वालों का तनासुब 77.17% हो गया है। चौहशुमे को 23,841 कोरोना के टेस्ट किए गए। इसी तरह से 8,21,311 जुमला टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। 724 कोरोना के नए केसेस में से जीएचएमसी के 395, रंगारेड्डी 196, मेडचल मलकाजगिरी 105, करीमनगर 101, आदिलाबाद 17, बोदादरी कोत्तागुड़म 27, जगतियाल 35, जनगांव 13, जयशंकर भोपालपल्ली 7, गदवाल 37, कामरेड्डी 32, खम्मम 42, कमरम आसिफाबाद 7, महबूब नगर 32, महबूबाबाद 28, मंचिरियाल 45, मेदक 34, मलक 11, नागर कर्नूल 22, नलगुंडा 67, नारायणपेट 9, निर्मल 23, निजामाबाद 61, पेद्दापल्ली 43, राजौना सिलसिला 37, संगारेड्डी 45, सिद्दीपेट 61, सूर्यापेट 44, विकाराबाद 14, वनपर्ती 28, वरंगल रूरल 32, वरंगल अर्बन 91 और यादाद्री भुवनेश्वर 10 शामिल है। महकमे सेहत की जानिब से कोविड टेस्ट के लिए 16 सरकारी और 23 खानगी दवाखानों के अलावा 1076 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर रैपिड टेस्ट की सहूलियात फराहम की गई है। इनमें से हैदराबाद की 97 मराकज़ शामिल है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो कोरोना से ना घबराए, अलामात के साथ ही दवाखाने से रुजू हो। किसी भी मदद के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए और शिकायतों के लिए 104 डायल किया जा सकता है। मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से आज मुफ्त दवाओं की तकसीम। शहर निजामाबाद में बिला लिहाज मजहब व मिलत अवामी तिबी मसाइल के एकसवी और बिरादाने वतन में फैले शक व शुबात को दूर करने की गर्ज से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतिमाम गुज़िश्ता 5 माह से मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए खिदमत खल्क़ का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। कभी बीमारों की इयादत करते हुए अस्पतालों में फ्रूट्स, कभी ज़रूरतमंदों में माली इमदाद का सिलसिला जारी है। आज शहर के लामागोट्टे में ज़ईफ़ मुस्लिम व गैर मुस्लिमों में दवाओं की तकसीम अमल में लाई गई, जिससे कई जरूरतमंदों ने इस्तेफादा किया और इस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से की जाने वाली खिदमत को सराहा। जिम्मेदारान को दुआएं दी। अपूर्णा मेडिकल के मालिक ने अद्वियात की कीमतों में मज़ीद डिस्काउंट करके इस अच्छे और इंसानियत नवाजी वाले काम को खूब सराहा और तालीमात इस्लामी का मकसद भी इनके सामने बयान किया गया कि इस्लाम मजहब की बुनियाद पर किसी से भेदभाव को पसंद नहीं करता है और खिदमत के लिए जरूरतमंदों का मजहब भी नहीं देखा जाता। यही हमारा मिशन और मकसद है कि हम किसी भी इंसानियत के काम आ जाए। इस मौके पर अवामुल नास ने मुफ्ती सैयद अकबर साहब, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तमाम ही ज़िम्मेदारान मानवता पब्लिक सेवा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज मोहसिन, मौलाना इब्राहिम नदवी ने इस काम को अंजाम देते हुए दुआएं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर साहब के ज़ेर निगरानी मानवता पब्लिक सेवा गुज़िश्ता 5 महीने से मुख्तलिफ़ तरीक़े से अलग अलग अंदाज से
قوم و ملت کی خدمت کرنے کا عزم کر رہی ہے۔ آج الحمدللہ چونکہ موجودہ حالات میں وبائی مرض کی وجہ سے ہسپتالوں میں جانا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور لوگ چونکہ بہت سارے غریب بیمار بھی ہوتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب، تو ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا اس مہینے میں کہ لوگوں کو ٹوکن دے کر جو لوگ غریب ہیں، دوائیاں خرید نہیں سکتے ہیں، معمولی سی دوائیاں بھی نہیں لے سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ یہاں منوہر صاحب سے رابطہ کیا، اپرنا میڈیکل جو خلیل واڑی میں ہے، تو ہم لوگوں نے یہاں ان سے رابطہ کر کے ان کو کچھ پیمنٹ ہم لوگوں نے جمع کر دیا. جتنے بھی నా పేరు మనోహర్ అండి, అపర్ణ ఫార్మసీ నుండి. ఇక్కడ మానవతా పబ్లిక్ సేవ అనే కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎన్జిఓ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు మా దగ్గర అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేసి ఎవరికైతే పేదలు ఉంటారో వాళ్ళకు డబ్బులు సహాయం కాకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు మెడిసిన్స్ ఇప్పించేసి చాలా డిస్కౌంట్లో ఇప్పించేస్తున్నారు. అండ్ అన్ని బ్రాండెడ్ మెడిసిన్ అన్ని అవైలబుల్ చేసి ఇప్పిస్తున్నారు. ఎవరైనా సరే మెడిసిన్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వాలని చెప్తున్నారు. नल कनेक्शन के जिम्मे में तेलंगाना सरे फहरिस्त रियासत. दही इलाकों में घर घर नल के जरिए पीने के पानी की सरबराही के जिम्मे में तेलंगाना रियासत ने मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल कर लिया. मरकजी वजारत जल शक्ति की जानिब से तेलंगाना को पहला मुकाम दिया गया. रियासत तेलंगाना में मिशन भगीरथा के तहत 98.31% नल कनेक्शन घर घर को मरबूत किए गए हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना को सरे फहरिस्त मुकाम मुल्क भर में हासिल हुआ है. तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में 54,37,739 मकान है, जबकि 16 अगस्त तक 53,48,078 नल कनेक्शन फ्राहम किए गए हैं. माबाकी 51,777 यानी 1.69% घरों को नल कनेक्शन नहीं है. इस बुनियाद पर रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल हुआ है. मरकजी हुकूमत ने नल कनेक्शन के जिम्मे में मुल्क भर की 29 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तेलंगाना को पहला, गोवा को दूसरा और पुडुचेरी रियासत को तीसरा मुकाम दिया है. गोवा में 89.05%, पुडुचेरी में 87.02% नल कनेक्शन दस्तयाब है. मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश को 29वां मुकाम हासिल हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.49% घरों को ही नल कनेक्शन हासिल है. मेघालय को इस फहरिस्त में सबसे आखिरी मुकाम हासिल हुआ, क्योंकि सिर्फ 1.86% मकानात को ही नल कनेक्शन हासिल है. तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल होने तक रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने मसरत का इजहार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी और दही सरबराही आप महकमे की टीम की मेहनत से ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका और रियासत को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल हुआ. के.टी. रामाराव ने इस पर मुबारकबाद पेश की. मार्केट कमेटी सेक्रेटरी शेख अलीम का साना अर्तहाल. इजहार ताज़ियत के लिए मार्केट कमेटी ने किया बंद का ऐलान. शेख अलीम साहब जो पेशे से तरकारी के होलसेल ताजिर थे और साथ ही साथ शहर की गंज कमेटी में बाहसियत सेक्रेटरी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे. वो निहायत ही खुश मिजाज व रहमदिल शख्सियत के मालिक होने के सबब वो न सिर्फ गंज में बल्कि शहर के हर तबके के अवाम के दिल पर राज करते थे और हर कोई इनकी शख्सियत का शहदाई है. लेकिन गुज़िश्ता चंद दिन से अलालत के सबब हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और वहीं पर इन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली. इनकी आखिरी रस्मात में हर मजहब के अवाम ने नमदीदा होकर शिरकत की और इनको ताज़ियत देने के लिए मार्केट कमेटी के जानिब से इस पीर को बंद का ऐलान किया गया है. कांग्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन के जिले सदर मुंतखब. निजामाबाद के हरकती कांग्रेस कायद मोहम्मद इलियास जो अवामी खिदमत के जज्बे से सरशाद है, जो मौजूदा कांग्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने के साथ साथ समाजी खिदमत अंजाम देते हैं और इसी खिदमत को और भी बुलंदी तक ले जाने के लिए इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस कमीशन नामी खानगी तंजीम में शमूलियत इख्तियार की और इनकी खिदमत के मद्देनजर इन्हें इस तंजीम की जानिब से जिले सदर के तौर पर मुंतखब किया गया, जिस पर इनके दोस्त अहबाब ने खुशी का इजहार किया. सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए MPJ की जानिब से दस्तखती मुहिम जारी. तेलंगाना सेक्रेटरीट की जदीद तामीर के लिए कदीम इमारत में मौजूद मसाजिद को शहीद कर दिए जाने के बाद इसकी उसी मुकाम पर तामीर के मुतालिक अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का ऐलान न करने पर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया. इसी मुहिम के तहत आज बाद नमाज जुमा ऑटोनगर मस्जिद याकूब पर मुनक़िदा दस्तखती मुहिम में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और अपने जज्बात का इजहार किया. इस मौके पर सदर तंजीम मोहम्मद अब्दुल अजीज व दीगर मौजूद थे. मस्जिद याकूब में
जॉइंट एक्शन कमेटी की ईमा पर और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम जो है दस्तखती मुहिम का आगाज़ वैसे हो चुका है गुज़िश्ता जुमा से, और सिलसिला जारी है, घर घर जारी है, और दीगर मुकामात पर, बाज़ारों में भी, दुकानों पर भी ये सिलसिला जारी है। और आज यहाँ पर इसका अहतमाम किया गया है। तो जो हमारे मकासद हैं इस सिलसिले में, उसको मैं वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखता हूँ। पहला मकसद तो ये है कि ये जो दो मसाजिद फिलवक्त सेक्रेटरीट के, एक मस्जिद हाशमी और दूसरा मस्जिद दफातर मोतमदी, इन दोनों मसाजिद को तौसी के नाम के ऊपर जो ढा दिया गया है, हमारा मुतालबा है और मुसलमाना ने तेलंगाना का मुतालबा है कि उसी मुकाम पर उस मसाजिद की तामीर की जाए। उसी तरह हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि अंबरपेट में जो मस्जिद शहीद की गई, मस्जिद खाना, उसको भी उसी मुकाम के ऊपर तामीर किया जाए। ये सिलसिला इस जमहूरी दौर की तरफ से सेक्रेटरीट की इन्हदामी मसाजिद के हुसूल की बाजियाबी के लिए ये दस्तखती मुहिम बतौर एहतजाज शुरू की गई है। इसका सिलसिला जारी है और इसमें जोक दर जोक हिस्सा लेते हुए अपनी मिली हमीयत का, ज़िम्मेदारी का सबूत दें। और हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, यहाँ पे अक़लियतों की इमलाक, उनके इबादत गाहें, उनके हालात जो है महफूज नहीं है। ये गैर महफूजियत जो है एक अजीब मसले की तरफ लेके जा रही हिंदुस्तान को। और तेलंगाना का अब जो मसला दरपेश है कि इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का मामला होने के बाद सेक्रेटरीट की इन दो मसाजिद का इन्हदाम क्या किस सिमत इशारा कर रहा है, क्या चाह रही हैं हुकूमतें। और ये अल्लाह के घरों की बाजियाबी के लिए हर फ़र्द को मिल्लत के अपने आपसी इख्तलाफात से अपनी जमात कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए गणेश त्यौहार का इनेकाद अमल में लाने की जिले कलेक्टर की अपील। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम से अपील की कि कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए गणेश त्यौहार का इनेकाद अमल में लाए। इन्होंने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत की हिदायत पर कोविड कवायद के तहत गणेश त्यौहार के इनेकाद की इजाज़त दी जा रही है। जिले कलेक्टर के मुताबिक अमसाल कोरोना वायरस फूट पड़ने की वजह से गणेश त्यौहार के महदूद और मशरूत तौर पर इजाज़त दी जा रही है, जिसके तहत बड़े गणेश मूर्ति या मंडप की इजाज़त नहीं रहेगी और न ही लाइट सिस्टम, डीजे साउंड सिस्टम की इजाज़त दी जा रही है। इन्होंने कहा कि गणेश मंडपों पर हुजूम की शक्ल में जमा होने की भी इजाज़त नहीं होगी या गणेश विसर्जन के दिन जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जिला कलेक्टर ने अवाम से अपील की कि कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए गणेश त्यौहार का इनेकाद अमल में लाए, ताउन करे। डेयरी शोबे में 40 साल शानदार रिकॉर्ड की हामिल निर्मल की मशहूर व मारूफ मदीना फार्म मिल्क के ब्रांच का निजामाबाद में क़याम और अज़ीमुश्शान इफ्तिताह। निर्मल शहर के मशहूर व मारूफ मदीना फार्म मिल्क जो डेयरी के शोबे में 40 साल शानदार रिकॉर्ड की हामिल निजामाबाद शहर में ब्रांच कायम करते हुए बोधन रोड पर रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप बाद नमाज जुमा इमाम व खतीब मस्जिद खलील मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल अलहद और डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इदरीस खान के हाथों अज़ीमुश्शान इफ्तिताह अमल में आया। मदीना फार्म मिल्क का निजामाबाद में क़याम अमल में लाए जाने पर मौलाना हाफिज अब्दुल अलहद मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर ने प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल रहमान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा शकील अहमद फाजिल, सदर टाउन मजलिस एजाज हुसैन, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेशन मेंबर ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। निर्मल शहर में ग्राहकों का एतमाद और सताइश हासिल करने के बाद मदीना फार्म मिल्क शाख का निजामाबाद में क़याम अमल में लाने का फैसला किया गया। प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल रहमान ने बताया कि मदीना फार्म मिल्क में खालिस दूध, असली घी, दही, पनीर, खवा, करीम वाजिबी कीमत पर फरोख्त किया जाता है। इन्होंने कहा कि रोज़मर्रा इस्तेमाल के अलावा बड़ी तकारीब, निकाह, वलीमा और दीगर तकारीबात के लिए ऑर्डर पर खालिस दूध, दही और दूसरी अशिया सरबराह की जाती है। इन्होंने अवाम से अपील की कि रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए भी मदीना मिल्क फार्म के दूध, दही, असली घी, पनीर, खवा का इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी तकारीबात के लिए ऑर्डर बुक करने के लिए फोन नंबर 8309265323 9676888424 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब में अवाम और ग्राहकों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मदीना फार्म मिल्क की खालिस दूध,
खालिद दही असली घी का मुआयना करते हुए वाह वाह करते हुए देखे गए। मेहमानों का इस्तेमाल मदीना फार्म मिल्क अब्दुल रहमान के अलावा मिर्जा गफ्फार बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मोहम्मद अब्दुल हसीब व दीगर ने किया। इफ्तिताई तकरीब में शेख नईम के अलावा दीगर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन व नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ زندگی اب تک گزر چکی ہے، جو کچھ ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں، ان تمام کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما. اے اللہ جو زندگی بچی ہے اس کو صحیح معنوں میں آپ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر، اسلام پر زندہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار ہے اللہ شروع کیے ہیں، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے عوام کو دی گنیش تہوار کی مبارکباد. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے عوام کو گنیش تہوار کی مبارکباد دی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مٹی گنیش استعمال کرے اور ماحول کو بچائے. اسی طرح حکومت کی جانب سے نافذ کردہ کورونا کے اصول و ضوابط پر سختی سے عمل کرتے ہوئے حفاظت کے ساتھ تہوار منائے. ماحولیات کی حفاظت میں GDPL K6 روشنی ٹی وی انتظامیہ کا اہم رول. گنیش تہوار کے مد نظر 20,000 گنیش مورتیوں کے ساتھ ساتھ پودوں کی تقسیم. ضلع کے کئی قائدین و عہدیداروں نے کی ستائش. GDPL K6 روشنی ٹی وی کے انتظامیہ عوام کے ہر تہوار و عید میں برابر شریک کرتا. جہاں رمضان کے موقع پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں ہر سال گنیش تہوار کے موقع پر عوام میں مفت مٹی گنیشوں کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے اور اس سال بھی عوام میں 20,000 سے بھی زیادہ مٹی گنیش کی تقسیم عمل میں لائی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ روٹری کلب کی جانب سے پودوں کی بھی تقسیم عمل میں لائی گئی. اس تقریب میں بلدی کمشنر جتیش پاٹل، بالے پلی صوبہ راؤ منگی رام مہاراج نے مذہبی رسومات انجام دیتے ہوئے عوام میں تقسیم عمل میں لائی. اس تقریب کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بھی ستائش کرتے ہوئے تمام کو مبارکباد پیش کی. جدید ماحول کی تیاری میں کیبل آپریٹرز کا اہم رول. کیبل آپریٹرز ڈے کے موقع پر خصوصی رپورٹ. قدیم دور میں ٹی وی ایجاد کے بعد سے ہی کیبل آپریٹر کے شعبے کی بھی شروعات ہوئی اور وقت کے ساتھ اس شعبے نے بھی کافی ترقی کی اور ان کی وجہ سے ہی آج ہر گھر میں ٹی وی پر کیبل آپریٹر کی وجہ سے مختلف چینلز آ رہے ہیں، جس کی వజہ سے ہی ہم پوری دنیا کا مشاہدہ کر پا رہے ہیں. దినోత్సవంగా కేబుల్ ఆపరేటర్లందరికీ శుభాకాంక్షలు, అలాగే ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు. మేము డిష్ టీవీ నుంచి మన యాంటీనా నుంచి డిజిటల్ వైజ్కు 25 సంవత్సరాలలో డిజిటల్ వైజ్ చేశాము. అందరూ ప్రజలు సహకారంతో ప్రజలు ఇలాగే సహకరించాలా. మేము ఎల్లవేళలా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తాము, ఇలాగే వినోదం మీద అన్నీ ఇస్తాము. మాకు ఎల్లవేళలా ప్రజలందరూ సహకరించాలి. GDPL K6 యాజమాన్యం కూడా మాకు సహకరించినట్టు మీరు ప్రజలు కూడా అందరూ సహకరించాలి. जमीयत उलमा आलमूर ने KCR हुकूमत से मुतालबा किया कि सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा मसाजिद को इसी जगह तामीर का आगाज करे और जल्द इसका ऐलान करे. सदर जमीयत उलमा आलमूर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक वफद ने आलमूर RDO श्रीनिवासलू से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें शहीद करदा 2 मसाजिद की तामीर का मुतालबा किया गया. इस मौके पर सदर जमीयत उलमा आलमूर हाफिज शेख इब्राहिम ने KCR हुकूमत से मुतालबा किया कि सेक्रेटेरिएट के मुनहदिम करते वक्त 2 मसाजिद को शहीद किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शदीद सदमा पहुंचा है. बताया कि जब एक मरतबा मस्जिद तामीर हो जाती है तो वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी और इसे किसी भी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता. इन्होंने KCR हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसी जगह पर सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की तामीरी कामों का आगाज कर दिया जाए. इस मौके पर सदर जमीयत उलमा आलमूर हाफिज शेख इब्राहिम, सेक्रेटरी मसाबा, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल वाहिद, मौलाना इसाक, मोहम्मद रिजवान, हाफिज जुनैद, मोहम्मद आदिल और दीगर मौजूद थे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज बाद नमाज जुमा जमीयत उलमा हिंद आलमूर की जानिब से RDO साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है. हैदराबाद सेक्रेटेरिएट और खाना मस्जिद को जो शहीद किया गया है और KCR साहब से मुतालबा करते हैं कि उसी जगह और उसी मकाम पर तामीर कराया जाए.
اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ K6 GDPL روشن ٹی وی انتظامیہ کا تاریخی کارنامہ، ماحول کی حفاظت کے لیے 20,000 گنیش مورتیوں کے ساتھ پودوں کی عوام میں تقسیم، ضلع کلکٹر و کئی اہم قائدین نے کی ستائش۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کے تعاون سے بودھن میں کورونا ٹیسٹنگ وین و مریضوں کی سہولیات کے لیے فراہم کردہ ایمبولینس کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر لتا و بلدیہ چیئرمین و وائس چیئرمین محمد احتشام سہیل کے ہاتھوں افتتاح۔ کووڈ قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے گنیش تہوار کا انعقاد عمل میں لایا جائے، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کی عوام سے اپیل۔ یونانی ہاسپٹل لائن گلی میں کووڈ ٹیسٹ سینٹر کا ضلع ایڈیشنل کلکٹر و TRS کارپوریٹر ایم اے قدوس نے کیا افتتاح۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے لیے شہید کردہ مساجد کی بازیابی کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے ضلع میں احتجاج کا آغاز۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔